Hello everyone, this is your Honey Ma'am. Welcome back to my channel and your Honey Ma'am is back with the topic ratio, proportion and unitary method for class 6 chapter 12. बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मेरे छोटे छोटे बच्चों को इस चैप्टर का कि मैम व्हेन यू विल कम विद दिस चैप्टर. सो नाउ आई एम हियर विथ योर ओन चैप्टर रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. ओन चैप्टर मीन्स आपके सारे चैप्टर है ना, विथ योर ओन हनी मैम. ठीक है. So we are going to discuss the topics which are very important in this chapter. और सबसे important तो ये है कि यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए, रेशियो की मीनिंग पता होनी चाहिए. you need to understand the meaning of proportion, the concept of proportion, and we are going to discuss all these things in this chapter. So the introduction of the chapter is about only ratio, proportion and unitary method. What is ratio? When the two quantities compared where the unit should be same. ठीक है, the two quantities when you are comparing that with the same unit, ठीक, with the sign symbol, this is your ratio. ठीक है, तो वो दो quantity will be only compared when their units will be same. तो this is the ratio. The comparison of two ratios, ठीक है, with the same units again is known as proportion. It means the two quantities का comparison is a ratio with the sign this, symbol this, and the two ratios का comparison is a proportion with symbol this. ठीक है, तो यहाँ पे भी same unit is must. ठीक, then is what? Now if the quantities or the ratios are not similar, not same, then what we have to do? We have to divide or multiply with the same number or by to the numerator and the denominator for making it to get the equivalent ratios. ठीक है, like if I'll say is this quantity is same, ठीक, तो you will say कि no. Then why? Because their denominators are not equivalent ratios. Now they are equivalent ratios. See, 6/9 and 4/9. ठीक है, तो 9 is what? Ratios are same, but now also the ratio मतलब the comparison between them is not equivalent. Why? When we will cross multiply it this, then we will get 6 5s are 54 is not equals to 36. So again these ratios are not equivalent. ठीक है, it means when we will get equivalent ratios like this. If I'll say, ठीक, now see 2/3, I will reduce this term as again 2/3 I'll get, again 2/3. Now these are equivalent ratios. So this is how we are making the ratios equivalent by dividing or multiplying with the same number to the numerator and denominator to get the equivalent ratios. ठीक है, proportion again I told you कि two ratios, if two ratios are equal, we say that they are in a proportion. ठीक है, तो we are using the symbol this or equal to का sign. ठीक है, okay, and then after we will be equating the ratios to get the same to LHS or RHS. ठीक है, so ये रहा आपका किसका? Proportion. So if two ratios are not equal, then we are saying that they are not in a proportion. Likewise, ठीक है, they were not in a proportion. These two ratios were not in a proportion. ये ऐसा आएगा ना, तो आपको बनाना पड़ेगा with the same, with the equal to sign in between and then cross multiply and then check LHS is equals to RHS or not. तो ये रहा आपका. And in the statement of the proportion, the four quantities involved, 1 2 3 4. ठीक है, and then when we take it in an order, then order are known as what are that known as respective term. First term, second term, third term, fourth term. ठीक है, and it is shown like this: 2 to 3 proportion to 4 to 9. So these two quantities, ठीक है, the terms are said to be extremes. Extremes, why? Because they are outside of the मतलब in a way. Then what are these said to be? These are said to be means. ठीक है, इनको मीन्स बोलते हैं, दोनों बीच वाली टर्म्स को मीन, एंड द टर्म्स विच आर आउटसाइड of this way is known as extremes.
द वे ऑफ टेकिंग आउट द प्रपोर्शन आर कॉमन, मतलब इक्वल और नॉट, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन व्हेन वी विल बी डूइंग द इक्वेशन एक्सरसाइज. ठीक है, राइट नाउ फॉर नाउ you are मतलब like supposed to know about these things whatever I have been taught here. ठीक, now I am talking about the unitary method. This method in which we find the value of one unit. Unit means ही one होता है, ठीक है, unit means one. So here you are with this so many questions, so many word problems where you will be with the quantities which are not unit. ठीक है, the amount is given for the certain quantities, certain number of quantities, and then you have to take out the certain other number of quantities, and for that how you will jump from 7 number of balls to the 5 number of balls, it is not possible like that. The method is not actually used, will be the wrong if you will jump like directly. So the method is what? You need to first of all take out the amount of the 1 ball, then go for the 5 ball. So you know the amount of 5 ball. I am just taking the example of balls. So you know the amount of 7 balls, ठीक है, and you need to take out the amount of 5 balls. So you are not supposed to jump like 7 to 5. No, you need to understand the concept of unit. So you have to find out the value of 1 of the ball and then go for the 5 of the ball. तो 7 में से 1 पे आने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि you are knowing about the number of balls and you are coming to the unit ball, and then going for the unit ball to number of balls you have to multiply that terms. ठीक है, तो ज़्यादा से कम में आने के लिए डिवाइड करेंगे और फिर यूनिट से ज़्यादा में जाने के लिए उसी नंबर ऑफ जो भी होगा, बॉल हो, ऑरेंजेस हो, क्लॉथ हो, शूज़ हो, जो भी हो आपका क्वेश्चन में जो भी होगा, ठीक है, आपको उस नंबर ऑफ डैश 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 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ 1 से, बिकॉज यू हैव टेकन आउट द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ यूनिट आर्टिकल. ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड. तो ये तो था आपका पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर का. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या है आपके पास? देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. चलिए कितना सिंपल है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, मैंने आपको रेशियो में समझाना है, ये रेशियो है फर्स्ट एक्सरसाइज. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20, ठीक है, बहुत सिंपल है. और नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 15, ठीक, बॉयज़ विल बी 15. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, बहुत सिंपल. रेशियो ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक, ये क्या होता है 20 to 15. अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई इंट्रोडक्शन में, वो ये था कि रेशियो का सिंबल तो बता दिया, लेकिन रेशियो को डिनोट सिंबल की बात करते हैं डिवाइड के फॉर्म में. किसके फॉर्म में? इसका मतलब है फ्रैक्शन के फॉर्म में करो, चाहे वो इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो, ठीक है, हार्डली मैटर्स. बस इस फॉर्म में आपको करना है. इस रेशियो को आपने किसके फॉर्म में चेंज किया, किस सिंबल में चेंज किया? बाय के, जो कि डिवाइड ही होता है. और इसका मतलब हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3. 5 4 जा 5 3 जा. तो अब आपका रेशियो क्या बना? फर्स्ट का रेशियो क्या बन गया आपका? 4:3. अब आते हैं सेकंड पे. आई होप कि ये अंडरस्टैंड हो चुका है आपको क्वेश्चन. सेकंड है आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इनका टोटल होगा स्टूडेंट्स को, टोटल स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है, इनका टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आप काउंट कर लीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल इनका 35 है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. तो नंबर ऑफ गर्ल्स से आप स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक. तो क्या होगा आपका? ये आपका आ जाएगा आंसर, गर्ल्स का है 20, स्टूडेंट्स का है 35, इसको कर दिए अपॉन के फॉर्म में, और ये आ गया आपका आंसर 5 4 जा 5 7 जा, जिसका रेशियो बनता है 4:7. खत्म, ठीक. क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा डन, ठीक. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल. तो लाइक फुटबॉल कितने? 6 कर दीजिए आप 6, ठीक. देन 12 लाइक क्रिकेट. लाइक क्रिकेट, यहाँ पे कितने क्रिकेट लाइक करते हैं? 12 लाइक क्रिकेट, ठीक. एंड द रिमेनिंग लाइक टेनिस. तो लाइक टेनिस, अब बाकी के टेनिस क्या करते हैं? लाइक करते हैं. तो 30 तो थे, 30 में से आपके 12 + 6 कितने हो गए?
18, तो 30 में से 18 गया, 30 माइनस 18 कर दीजिए, ये आपके आ गए 12। ठीक है, तो आपके आ गए हैं पूरे आंसर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए आपको कितने कितने हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल से करते हैं हम इसका रेशियो किसका, नंबर ऑफ टेनिस का, लाइक टेनिस। ठीक, तो क्या आएगा, कितना सिंपल है, देखिए फुटबॉल कितना है 6, टेनिस कितना है 12, इसको रेशियो को अपॉन में कर दीजिए, क्या आएगा 1/2, 1/2 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1:2, बस खत्म। ठीक, अब बी देखिए इसका, लाइक क्रिकेट से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक क्रिकेट, तो लाइक क्रिकेट कर दीजिए, लाइक क्रिकेट और टोटल स्टूडेंट्स। ठीक, टोटल तो 30 थे, हमको तो पता है कि 30 थे, आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो क्रिकेट है आपका 12 और ये 30 है, इसको कर दीजिए आप 12/30 जो कि हो जाएगा 2/5, तो फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा 2:5। एंड आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका किसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें है आपके पास रेक्टेंगल्स भी हैं, रेक्टेंगल्स है ना, यस रेक्टेंगल्स हैं, और स्क्वायर है और ट्रायंगल है और सर्कल है। तो ये कितने हैं देखिए 1 2 ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने हैं, ट्रायंगल्स का मैं आपका शेप बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं आपके पास कितने 2 3। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, स्क्वायर का भी आपको शेप दे देते हैं हम। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा देखने में। स्क्वायर्स कितने स्क्वायर्स हैं आपके पास, एक ही है, ओनली 1। ठीक, फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देख लेते हैं अब, रेक्टेंगल्स कितने हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं 1 2, ओनली 1, आई कैन सी दैट ओनली 1 इट इज। तो रेक्टेंगल्स तो इनसाइड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, अच्छा रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर ही है बेटा, स्क्वायर ही है सारे के सारे। तो ये कर दिया हमने, स्क्वायर्स को कर दिया हमने, कितने हैं 2 देख लेते हैं 2। ठीक है, और रेक्टेंगल्स तो है ही नहीं, तो ये हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया डिलीट। ठीक, अब देख लेते हैं हम इस पे क्या है, और क्या सर्कल्स हैं, सर्कल्स को इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये हैं आपके सर्कल्स, कितने सर्कल्स हैं आपके पास 1 2 है। ठीक, तो टोटल फिगर में कितने हैं अंदर, टोटल फिगर है हमारे पास, टोटल फिगर्स देख लेते हैं हम सर्कल के, रेक्टेंगल के इनसाइड 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। यहाँ से भी काउंट कर सकते थे, वहाँ से भी काउंट कर सकते थे, नो इशू। ठीक है, अब निकालते हैं रेशियो। व्हाट इज दैट रेशियो, क्या है आपका रेशियो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द सर्कल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का रेशियो सर्कल्स से हो रहा है, ट्रायंगल्स कितने हैं, ट्रायंगल्स हैं 3, सर्कल्स हैं 2, आ गया आंसर आपका ए का। ठीक, अब बी देखिए इसका, बी में क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स, स्क्वायर्स का, ये स्क्वायर्स का ऑल फिगर्स के साथ है। ठीक है, रेशियो, तो क्या हुआ, स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास 2 और सारे फिगर्स कितने हैं 7, ये भी हो गया आपका। ठीक, अब सी क्या है आपका, सर्कल्स टू ऑल फिगर्स। ठीक है, ये आपका सर्कल्स टू ऑल फिगर्स, यहाँ पे आ गया आपका, सर्कल्स कितने हैं आपके 2 और ऑल फिगर कितना है 7। इसको हम क्यों नहीं कर रहे आगे सॉल्व, कैन यू सी दिस, हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में, तो ये आ गया आप इसका आंसर, डन। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद, निकाल लीजिए, लिख लीजिए, इट्स 9 किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर, अख्तर ने कितना किया है आपका 12 किलोमीटर।
ठीक है, लिख लिया हमने। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो हो गया, आपका आंसर आ गया है। क्या है आपके पास? इन एन आर। इन एन आर मतलब 1 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, तो यही होता है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर, आ गया, आ जाएगा आपका आंसर। क्या है? 9 to 12 किलोमीटर। क्यों नहीं लिख रही हूँ आपको पता है? अगर मैं यहाँ पे किलोमीटर लिख भी दी है ना, तो क्या होगा, जब आप इसको 9 किलोमीटर अपॉन 12 किलोमीटर करेंगे तो सबसे पहले यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। ये हो जाएगा 9 3 सा 9 4 सा, आंसर आ जाएगा आपका 3:4। खत्म, डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। होप कि आप समझते जा रहे हो, बहुत सिंपल है। आपके पास जो क्वेश्चन है उसको रेशियो के फॉर्म में किया, रेशियो में रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस किए, नहीं किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 15/18 इज फिल इन द ब्लैंक सही है, बहुत सिंपल है। डैश है आपका, ब्लैंक है और 6 है, तो 18 6 कब बना? 18 बड़ा नंबर है, 6 छोटा नंबर है, तो हम जब बड़े से छोटे में आते हैं, जब ग्रेटर से स्मॉलर में आते हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर इक्विवेलेंट ना, इक्विवेलेंट रेशियो में होता है, जो कि उस 18 को डिवाइड किया होगा ताकि आंसर 6 आ सके। तो किसके टेबल में 18 6 टाइम्स आता है? 3 के टेबल में। तो हमने क्या किया, इसको 15/18 एज इट इज़ रखा, यहाँ डिवाइड किया दोनों को 3 से, क्योंकि मैंने बोला इक्विवेलेंट जो चीज़ आप न्यूमरेटर में करेंगे वही सेम डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? 3 ने 18 को डिवाइड किया, आ गया 6, ये देखिए 6 6 चेक हो गया। ठीक है, और 3 ने 15 को डिवाइड किया, आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 5। अब आगे करते हैं। अब आपके पास क्या है? 5/6 है नीचे। अब आगे का ब्रैकेट जो है वो आपका बन गया है 10, ये हो गया 10, मतलब ये 5 से 10 पे चले गया। मतलब 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा जो 10 आया होगा, वही मल्टीप्लाई कर दो आप 6 में भी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशियो है। तो क्या हो गया, ये 10 और ये 12, तो आपका आंसर क्या आ गया? 12। ठीक, अब फिर नेक्स्ट है, इसी 5/6 को इसने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब आंसर आ गया नीचे 30 और ऊपर हो गया ब्रैकेट, मतलब 5 है, 6 में क्या मल्टीप्लाई, छोटा है ना 6, 6 से बड़ा हो गया 30, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा ऑफकोर्स, तो 6 5 जा करने से 30 आ जाता है। इसी 5 को हम जब ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, तो आ गया आपका बॉक्स का आंसर 25। डन। आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोज? यस, ऑफ कोर्स दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज। 15/18 को भी डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 5/6 आएगा, 10/12 को भी करेंगे तो 5/6 आएगा, और 25/30 को भी करेंगे तो 5/6 आएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। 81 से आपको 108 को क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो 81/108 मैं ए कर रही हूँ इसका। ये दोनों ही मुझे 9 के टेबल से जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों ही 9 कैन डिवाइड बोथ टू बोथ दिस नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड यू विल गेट 9/12। ठीक है, 9 9 जा 81 और 12 9 जा 108। देन अगेन 3 वी कैन टेक इट एंड दिस विल बी लाइक 3 to 4। मैंने 3 से फिर इन दोनों का रेशियो को डिवाइड किया और आ गया आपका आंसर 3 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। इसी का बी है 98 से 63 का। ठीक है, करते हैं, चलिए 98 to 63। ये देखते हैं आपका 9 से जा रहा है, यस 7 से जा रहा है, हाँ 7 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। दोनों को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 4 जा और ये 9 जा, मतलब 4:9 इज योर फाइनल आंसर। डन। ठीक, 4 नहीं 14 है, एक्चुअली 14 है। 7 14 जा क्या आता है, या 14 7 जा 98, वी कैन सी दैट। देन सी, व्हाट इज सी? 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। अब आ गई हैं भैया यूनिट्स, यूनिट्स दोनों की सेम है बिल्कुल, यस। तो 33/121 डिवाइडेड बाय 11, मुझे 11 से दिख रहा है, 11 से 3 जा और 11 जा, मेरा रेशियो आ गया 3:11, फाइनल आंसर। ठीक है, फिर आ जाते हैं डी पे। व्हाट इज दी?
डी इज 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ठीक है, तो आ जाते हैं मिनट्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो 30/45 कर लिया हमने यहाँ पे, और आ जाएगा ये किससे डिवाइड होगा, 6 से, बिल्कुल 6 से हो रहा है, 6 से नहीं होगा, ये होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड के बाद आपका आंसर आएगा 10 और 15, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। फर्दर आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए। आ गया आपका आंसर 2:3। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो हो गया है डन, क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, और फिर यस क्वेश्चन नंबर 7 है, वेट, क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे इसके बाद और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट्स स्टार्ट 7th क्वेश्चन में है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, अगेन द सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम स्टार्ट, विच इज दैट 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। ये हुई बात कुछ डिफरेंट। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी यूनिट सेम नहीं है, तो आप यूनिट सेम करिए। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक, और 1.5 आवर इज इक्वल्स टू 60 + 30 90 मिनट्स। ठीक है, अब हो गए दोनों मिनट्स में चेंज, तो 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप, और ये हो जाएगा 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स कैंसिल, 0 कैंसिल, 3/9 हो जाएगा, डिवाइड 3 से दोनों ही, और आंसर आ जाएगा 1:3। ठीक है, 1/3 और 1:3 आंसर। रेशियो निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी का बी, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अगेन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू 100 + 50, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 40 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर का रेशियो। तो 40 सेंटीमीटर अपॉन 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, 0 कैंसिल, 4/15 किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, सेम नंबर से, इसीलिए आप इसको एज इट इज रखेंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपका ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे DYS, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। यू विल बी गेटिंग कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं सॉल्व। इफ यू विल गेट एनी डाउट डू आस्क थ्रू मेलिंग। ठीक है, आई विल बी देयर टू सॉल्व। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 15,000, मतलब अर्निंग कितनी है, ₹15,000। ठीक है, सेविंग कितनी है, अच्छा 1,50,000 है, सॉरी इट्स 1,50,000। सेविंग्स कितनी है, 50,000 रुपीज़, 50,000, ये भी हो गया आपका। फाइंड द रेशियो ऑफ द मनी शी स्पेंट भी है ना, हाँ तो स्पेंट निकाल लेते हैं। स्पेंट, सेविंग, अर्निंग्स माइनस सेविंग, जो कमाया और जितना बचाया दोनों को माइनस कर दोगे तो स्पेंट निकल जाता है। ऐसा ही तो होता है ना, अगर आप सिंपली भी किसी शॉप में लेने जाते हैं कुछ सामान, आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपीज़ दिया, आपने 30 रुपीज़ का सामान लाया, तो बचाया कितना, 20 रुपीज़। ठीक है, या आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिया और आपने बचाया 30 रुपीज़, तो फिर स्पेंड कितना किया, 70 रुपीज़। 100 - 30 70, 50 - 30 20। हाँ ये आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, अर्निंग है 1,50,000 माइनस 50,000 कर दीजिए आप, आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर स्पेंड का। तो अब रेशियो निकालना बहुत इजी हो जाएगा। मनी दैट सीमा अर्निंग टू सेव्स, कितना आ जाएगा, अर्निंग टू सेविंग। ठीक है, सेव से बेटर है सेविंग्स लिखना, तो ये सेविंग है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्पेंट लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, सब ये दोनों ही राइट है। ठीक है, तो 1,50,000 से 50,000 की रेशियो, तो 1,50,000 दोनों ही रुपीज़ में है, कोई भी पैसे में नहीं है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये 0 जीरोस कैंसिल, 4 जीरोस कैंसिल, यस यहाँ पे भी 4 जीरो कैंसिल, 15/5 है आपका, दोनों को डिवाइड करिए आप 5 से, यू विल बी गेटिंग 3:1। आंसर आ गया आपका इसका ए का। अब आप देखिए बी इसका, बी क्या है, मनी शी सेविंग, शी सेव्स मतलब सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, या एक्सपेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक वर्ड है जो करेक्ट हो सकता है, ठीक है, एक्सपेंस, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, सेविंग, सेविंग स्पेंट, ठीक है। अब है आपका ये 50,000 सेविंग थी उसकी रुपीज़ में, और यहाँ पे एक्सपेंस है उसका 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, 1 लाख, तो आ जाएगा आपका आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका हो गया 5/10, जिसको कि आप डिवाइड करेंगे 5 से ही, एंड यू विल बी गेटिंग 1:2 आंसर। आपका 8th क्वेश्चन भी डन हो गया, ठीक है, तो 8th क्वेश्चन आपका डन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में, चलिए। 9th इज देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल, देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल। चलिए, तो नंबर ऑफ टीचर्स टोटल, देखिए आप मेरे को देख रहे होंगे कि मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत लिख रही हूँ, सो दैट मैं क्या ना कर पाऊँ, कुछ भी पॉइंट मिस ना कर जाऊँ, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसके, देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3300 है, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड रेशियो, आपका रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, बहुत सिंपल, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे लिख लीजिए टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, स्टूडेंट्स का। तो 102 to 3300। अब यहाँ पे आपको 0 बीच से नहीं काटना है, दैट इज रॉन्ग मेथड, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, 2 से मुझे लग रहा है सबसे पहले डिवाइड करूँ तो मेरा आ जाएगा 51/1, फिर देन 6, देन 5, देन 0। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ मेरा फिर 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड करूँगी मैं दोनों को, ये आ जाएगा 117 और ये आ जाएगा 550। आंसर आ गया 17:550, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के 10th क्वेश्चन पे, इसी एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन पे। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स, 2,300 आर गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, कितना सिंपल है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4320, गर्ल्स कितनी है 2300, तो बॉयज़ कितने होंगे, बहुत सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बॉयज़ आ जाएंगे 0202, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियोज, अब रेशियोज निकालना है हमको। पहला क्या है, गर्ल्स का किससे, स्टूडेंट्स से, ठीक है, गर्ल्स का स्टूडेंट्स से रेशियो क्या होगा, गर्ल्स 2300 और स्टूडेंट्स कितने हैं 4320। चलिए निकालते हैं, 2300/4320, ये कैंसिल। योर फाइनल आंसर इज नॉट लाइक दैट because you have to reduce it to the simplest form. So this both are even numbers, so I am dividing it to the both the numbers with numerator or denominator by 2, so it's 115 upon that is 216. So now you can write it like 115 to 216. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी पार्ट है, बॉयज़ का किससे, गर्ल्स से, बहुत सिंपल। क्या होगा आपका, बॉयज़ कितने 2020 to 2300, तो यहाँ पे आ गया 2020/2300, 00 कैंसिल, अगेन 202/230, दोनों ही इवन नंबर हैं, डिवाइड कर लीजिए 2 से, आ जाएगा 101/115, तो दिस विल बी 101 to 115, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो,
ठीक है, कितना सिंपल है देखिए। अगर आपने रेशियो समझ लिया है, आपको कॉन्सेप्ट में फटाफट वैल्यूज पुट करनी है, इसकी सॉल्यूशन करने हैं जहाँ तक सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सभी पूरे के पूरे ही ऐसे हैं पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। अब मैं इसका पूरा सीन आपको बताऊंगी करके, और आपको सॉल्यूशन इसको खुद से करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? टोटल स्टूडेंट्स हैं 1800। ठीक, बास्केटबॉल, ऑप्टेड बास्केटबॉल, आपके लिए मैंने सिर्फ क्या बनाया, बीबी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप बास्केटबॉल पूरा लिखेंगे। ठीक है, इट्स 750। अब देन क्रिकेट, ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट कौन कितने स्टूडेंट्स ऑप्ट किए हैं? 800। अरे क्रिकेट तो भैया सबका फेवरेट है। ठीक है, ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस ऐसे ना जनरली कोई भी मैच चलता है ना तो नहीं देखता है कोई, लेकिन अगर क्रिकेट चलता है तो सारे काम छोड़ के, छोटे हो या बड़े, बूढ़े हो या बच्चे, सब देखते हैं, है ना। तो इसीलिए अक्सर हर क्वेश्चन में आप देखिएगा क्रिकेट ऑप्ट करने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्रिकेट देखने वाले बच्चे ज़्यादा, बच्चे नहीं, मैं तो पीपल की बात कर रही हूँ, और इनको लाइक करने वाले पीपल ज़्यादा होते हैं, इवन गर्ल्स, इवन ओल्ड वीमेन। ठीक है, तो ये खेल ही ऐसा है इतना प्यारा, तो इसको सब इट्स नॉट लाइक कि बाकी गेम्स अच्छे नहीं है, बाकी भी बहुत अच्छे हैं, बट ये मोस्ट पॉपुलर गेम है। ठीक है, और ये है नेक्स्ट है टेबल टेनिस जो कि रिमेनिंग है। तो 1800 में से 750 और 800 तो आपके चले गए किसमें, फुटबॉल और क्रिकेट में। तो 750 प्लस 800 होता है 550। 1800 में से 550 आप माइनस करिए, आपका आंसर आराम से 250 आने वाला है। आप देख सकते हो 1550 है ये, इट्स नॉट 550, इट्स 1550। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 250। तो टेबल टेनिस को 250 लोगों स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है। ठीक, तो आपको बताना है रेशियो इसमें किसका किसका ऑप्टेड बीबी, खुद से निकालेंगे अब आप, ये मैं तो सिर्फ सेट करके दे रही हूँ आपको रेशियोज को। ऑप्टेड बीबी टू ऑप्टेड टेबल टेनिस, ऑप्टेड टीटी। ठीक है, टेबल टेनिस, इसका रेशियो आप खुद निकालेंगे क्या आना चाहिए यहाँ पे, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, देन ऑप्टेड क्रिकेट, मज़ेदार गेम है ये बहुत, कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगता है। देन ऑप्टेड बीबी। ठीक है, आप बाकी गेम्स भी ट्राई करिए, वो भी बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है सी है आपका टोटल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बीबी। तो ऑप्टेड बीबी टू ऑप्टेड, नहीं टोटल स्टूडेंट्स, इट्स टोटल स्टूडेंट्स। ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो आई डोंट वांट टू राइट इट हियर, आई जस्ट गो विथ इट हियर ओनली। ऑप्टेड बीबी टू टोटल स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए एकदम करेक्ट। ठीक है, आई होप आप कर लेंगे इसको अपने आप से। अब तक के आप इतना कुछ सीख लिए हैं तो 11th क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज दैट? कॉस्ट ऑफ डजन पेंसिल्स, डजन मीन्स 1 डजन में कितनी पेंसिल्स होती हैं? 12। कितना होता है एक्चुअली अमाउंट? 12। तो 1 डजन पेन्स में होगा 12 पेन्स। ठीक है, 1 डजन पेन्स का कॉस्ट, 12 पेन्स का कॉस्ट, तो 12 पेन्स का कॉस्ट है आपका 180, और 8 बॉल पेन्स का कॉस्ट है आपका 56। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू अ कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो 12 पेन्स का कॉस्ट है अगर कितना, 180 रुपीज़, तो 1 पेन का कितना होगा? ऑफकोर्स 180 से 12 को माइनस डिवाइड करेंगे, करते हैं डिवाइड 2 से, देखते हैं कहाँ तक जा रही है ये बात। 90/6, फिर 2 से करते हैं, ये हो जाएगा आपका 45/3, फिर 3 से करते हैं इसको डिवाइड, और ये आ जाएगा आपका 15 रुपीज़। ठीक है, अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 पेन का कॉस्ट है 15 रुपीज़। ठीक, अब आते हैं 8 बॉल पेन्स। 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट है ₹56। ठीक है, तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट क्या होगी? 56 से डिवाइड कर देंगे 8 को, आ जाएगा आपका आंसर 7 रुपीज़। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है अब आपको यहाँ पे। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज व्हाट? किसका किसका निकालना है?
बॉल पेन से बॉल पेन का, कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है 15 और बॉल पेन कितना है 7। आपका रुपीज़ रुपीज़ तो कैंसिल ही हो गया, आंसर आ गया आपके पास क्या 15:7 फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपका 12th क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th पे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है आपसे, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। ठीक है, ब्रेथ और लेंथ हॉल की जो है वो उसका रेशियो है 2:5। ओके, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, चलिए अब गिवन बिलो मतलब ये वाला टेबल आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते हैं। चलिए, पहला है आपका ब्रेथ में आपका टेबल बना हुआ है 10, देन बॉक्स, देन 40। ठीक है, ये रहा आपका। और जो लेंथ है वो आपकी है क्या, व्हाट इज दैट लेंथ 25, देन है 50, देन है ये बॉक्स। ठीक है, तो 10 से 20 पहली बात तो सबसे पहले आपका इनिशियल रेशियो था जो कि है 2/5। 2/5 से 10/25 बना, इसका मतलब इसमें 5 और 5 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, फिर 2/5 में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो 50 आ गया। ऑफकोर्स 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 50 आ गया डिनोमिनेटर में। इसी 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और 20 ले आओ, आ गया ना। तो फर्स्ट बॉक्स आपका फिल हो गया। फिर 2/5 में है आपका क्या मल्टीप्लाई करने से 40 आ गया, तो 20 मल्टीप्लाई करने से 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 100। तो ये आ गया आपका 100, यहाँ पे हो गया आपका काम खत्म। 13th क्वेश्चन डन। ठीक, तो ये था, कितना सिंपल देख सक रहे हो आप कि कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशियो 3:5, 3:2। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स कितनी है, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम 14। तो पेन्स कितनी है, नंबर ऑफ पेन्स हैं आपके पास 20। ठीक है, सम ऑफ रेशियोज निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में रेशियोज निकालने का, सम निकालने का बहुत इजी मेथड होता है। ये है आपका 5। ठीक है, अब क्या शीला गॉट, शीला का जो शेयर है वो देखते हैं। तो शीला गॉट कितनी पेन्स, जस्ट सी, इसका रेशियो शीला का अपॉन द सम, ठीक है, इनटू टोटल पेन्स। ये हो गई आपकी 4, यहाँ आ गई आपकी 12 पेन्स जो शीला को मिली। अब नेक्स्ट है आपका किसका निकालना है, संगीता का। तो संगीता को कितनी मिली, सेम। संगीता गॉट, उसका रेशियो कितना था 2, टोटल रेशियो, टोटल सम कितना था रेशियो का 5 इंटू 20, क्या हो गया ये 4, आंसर आ गया 8 पेन्स। अब इन दोनों 12 पेन्स और 8 पेन्स को प्लस करो, देखिए 20 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन भी, देखिए कितने छोटे में कंप्लीट हो गया। आपको भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स के साथ कंप्लीट करना है ताकि कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन या डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज़ बिटवीन हर डॉटर्स। एक मम्मी के पास है 36 रुपीज़, वो अपनी बेटियों को डिवाइड करना चाहती है और वो सोच रही है मैं किसको कैसे करूं। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो इन जो मेरी जो डॉटर्स हैं इनकी एज के हिसाब से इनको डिवाइड कर देती हूँ। तो देखिए कितना सिंपली उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आप देख सकते हो कि ये पूरा चैप्टर रियल लाइफ से कितना कनेक्टेड है। सारी ही सिचुएशंस रियल लाइफ से कनेक्टेड ही आ रही हैं, जो हम जनरली किसी को भी बात करने में बोल सकते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन कोई ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा रियल लाइफ से कनेक्टेड है ना। तो आप भी जब ऐसे बातें भी करते हैं तो मैं ना इसको इतने इतने रेशियो में दे रही हूँ, आप बताओ कि अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं आप, ये इट्स अ वेरी सिंपल गेम। तो अगर मेरे पास इतनी चीज़ें हैं और मैंने 3 लोगों को कुछ इस रेशियो में डिवाइड किया तो बताओ किसके पास कितना आएगा। कितना सिंपल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो रियल लाइफ से कनेक्टेड है और रेशियो प्रपोर्शन यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज़ एंड डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। ठीक है, एज ऑफ श्रेया लिख लीजिए आप, कितना है 15 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ भूमिका कितना है, लिख लीजिए आप 12 ईयर्स। ठीक है, भूमिका छोटी है भैया, अभी से ही पता चल रहा है इसको कम पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है
टोटल अमाउंट इज ₹36। तो सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस, क्योंकि रेशियो इसी के बेस्ड है ना, तो हम इनकी एजेस का सम कर लेते हैं। 15 + 12 = 27 ईयर्स, ठीक है। नाउ श्रेयास शेयर, श्रेया का कितना शेयर बनता है उस 36 रुपीज़ में। श्रेया की एज थी 15, सम था एज का 27 और रुपीज़ थे 36, ठीक है। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो बचा कितना, 5 × 4 ₹20, ये मिल गया है श्रेया को, ठीक है। अब आते हैं भूमिका शेयर। भूमिका का शेयर कितना है, भूमिका शेयर, उसकी एज है थी 12, टोटल सम था एजेस का 27, टोटल अमाउंट था 36। सेम करेंगे, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 4 × 4 कितने रुपीज़ हो गए यहाँ पे भैया, 16 रुपीज़ मिलते हैं भूमिका को। और दोनों को प्लस करो, देखिए 36 आ रहा है, 20 + 16 36 होता है। कितना सिंपल था, देखिए। आप लोग भी ऐसे बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं इसी टॉपिक्स पे बेस्ड, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किसको कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो एज ऑफ फादर कर लेते हैं, चलिए। एज ऑफ फादर कितना है यहाँ पे, 42 ईयर्स है, ठीक है, ओके। देन एज ऑफ सन, सन्स एज, सन की एज कितनी है, 14 ईयर्स है, ओके। अब रेशियो किसका किसका निकालना है देखते हैं। रिक्वायर्ड रेशियोज, क्या रेशियो है देखते हैं, चलिए। फर्स्ट, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज है, ठीक है ये। तो यहाँ पे 42/14 करेंगे, तो 42/14 करने से क्या आ रहा है देखिए, ये 21 ज़ा, ये 7 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि 13:1, ठीक है, ओके। ये हो गया क्लियर आपका रेशियो। नेक्स्ट है बी क्या है आपका, एज ऑफ फादर टू द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। एज ऑफ फादर टू द सन, जब बच्चा 12 ईयर्स का था तो पापा कितने के होंगे। अब ध्यान से देखिए, जब बच्चा 1 ईयर का था तो पापा 13 ईयर्स के थे, जब बच्चा 12 ईयर्स का होगा तो पापा कितने ईयर्स के होंगे, ध्यान से समझिए। 13 ईयर्स में 1 ईयर, अब ये हो गया 12, तो यहाँ पे भी तो 12 करेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा आंसर, 12 × 13, देखिए क्या हुआ, 6 3, और ये हो गया 12। इतना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे ये 156 तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा अगर 12 ईयर्स का है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर्स के बाद 12 ईयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया। फिर ऐसे तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो हमारी एज पूरी गड़बड़ी हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एज ऑफ फादर टू द सन आफ्टर 12 ईयर्स, आप बोल सकते हो, है ना, आफ्टर 12 ईयर्स, क्योंकि 1 ईयर में प्रेजेंट एज में ये था, तो 12 ईयर बच्चा हो गया, मतलब वो 12 ईयर्स के बाद वाली बात है, ठीक है। तो फादर विल बी 13 + 12, ठीक, एंड किड विल बी 12, तो क्या हो गया यहाँ पे 25 to 12, ठीक, क्लियर। देन एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स एंड एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, ये बहुत सिंपल है। एज ऑफ फादर बहुत सिंपल है, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। अब ये एक बात बताओ, इनकी प्रेजेंट एज में 10 ईयर्स बनाते हैं, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स बोल दिया है, तो ठीक है, चलिए 42 में आफ्टर 10 ईयर्स 52 हो जाता है, और 14 में आफ्टर 10 ईयर्स 24 हो जाता है। आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, 2 से डिवाइड करिए, 26/12 और 13/6 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है डी में देखते हैं क्या है ये, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, ये होगा आपका DYS, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, मुझे बताएंगे कि पहले 3 अगर आपको समझ में आया, जब सन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अपने आप आपको फादर वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका DYS, डू योर सेल्फ एंड लेट मी नो कि आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर का एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं
और कॉन्सेप्ट को समझते हुए किए हैं। इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर हुआ है। मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि होगा प्रपोर्शन पे बेस्ड, बहुत ही जल्द। और होप करती हूँ कि पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अब आप अपने रियल लाइफ कनेक्शंस को कहीं ना कहीं रेशियो से कनेक्ट कर पाएंगे और यूनिट की क्वांटिटी को निकालना भी आ चुका है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को पॉज करती हूँ और नए वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने प्रपोर्शन का लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी। पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू।